તથા વિશાળ સંખ્યામાં આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છો, તમામનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરું છું. આજે સમગ્ર દેશમાં એક બાજુ મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે, બેરોજગારી કાબુ બહાર છે, ભ્રષ્ટાચારની તમામ સીમાઓ ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા તોડી નાખવામાં આવી છે અને સામાન્ય નાગરિકના અધિકારો છીનવાઈ જતા હોય એ સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ત્યારે બીજી બાજુ ધર્મ, જાતિ અને જ્ઞાતિ, પ્રાંત અને ભાષાના નામે દેશને વિભાજિત કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આપણા નેતા રાહુલજી સમગ્ર દેશમાં પગપાળા પ્રવાસ કરી અને એક સંદેશો આપી રહ્યા છે, એકતાનો સંદેશો આપી રહ્યા છે. તેઓ સ્પષ્ટ છે, તેઓ ચિંતિત છે અને અત્યંત પ્રેમથી પણ સાથે સાથે આક્રમકતાથી તેઓ કહી રહ્યા છે કે દેશની એકતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી શકશે. દેશની એકતા જ વિકાસની દિશા સાચી આપી શકશે, આ દેશને બચાવી શકશે. 2100 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરીને આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ ઉપર આપણે સૌ રાહુલજીનું સ્વાગત કરવા માટે ઉત્સુક છીએ. પરંતુ મોરબીની તાજેતરની જે દુર્ઘટના થઈ એનાથી આપણે સૌ વ્યથિત પણ છીએ. 170 થી વધારે લોકોએ પોતાના જાન ગુમાવ્યા છે, અનેક કુટુંબો નિરાધાર બન્યા છે અને જે ટાળી શકાય એવી દુર્ઘટના સરકારની બેદરકારીને કારણે થઈ છે. ત્યારે આ તમામ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને આપણે સૌ 2 મિનિટ ઊભા થઈ મૌન રાખી અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરીશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ. કોંગ્રેસ પક્ષ આ તમામ અસરગ્રસ્ત લોકોની પ્રત્યે પોતાની સંવેદના વ્યક્ત કરે છે અને એ સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં લઈ અને આજે ફૂલહારથી નહીં પણ શબ્દોથી રાહુલજીનું સ્વાગત કરીશું. હું ભાઈ ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુને વિનંતી કરું કે આવી અને શબ્દોથી સ્વાગત કરે. આપણા સૌના આદરણીય ભારતના લોકોના દિલમાં વસતા રાહુલજીનું અહીંયા રાજકોટમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સૌ આગેવાનો, લીડરો, સૌનું સ્વાગત છે આજે રાજકોટમાં. અને એક મોકો હું લઉં છું કે राहुल जी, वैसे तो मेरे ब्लड में पूरी कांग्रेस भरी हुई है कितनी पेटियों से. मेरे से एक गलती हो गई थी, कांग्रेस ने मुझे माफ किया, लेकिन लोगों के बीच में मैं आपकी माफी मांगना चाहता हूं. मैं भूले से भटक गया था.
मैं भूले से भटक गया था, आम आदमी में चला गया था। सर जी, वहां जाके मैंने देखा एक झूठे आदमी को निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था और मैं फंस गया एक दूसरे झूठे आदमी केजरीवाल जी में। मैंने सब मेरे सामने देखा और वो बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे। मैंने वहां से भाग के वापस आ गया। मैं कहना चाहता हूं सब लोगों को कि उनकी बातों में मत आना। मैंने बहुत उनको करीबी से देखा है। वो कट्टर ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है, मैंने देखा है। वो कट्टर राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है, ये मैंने देखा है। तो इसके लिए मुझे कांग्रेस और आप सब माफ करें, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सबका आभार। जय हिंद। સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર રાહુલજી જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના જસદણની એક કલાકૃતિનો નમૂનો અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો વતી એક ગાડું રાહુલજીને અર્પણ કરશે રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અર્જુન ખાટરિયાજી, રયાભાઈ રાઠોડ સુરેન્દ્રનગર પ્રમુખ, ભરતભાઈ અમીપુરા જુનાગઢ પ્રમુખ, જીવનભાઈ ખંભાળિયા જામનગર પ્રમુખ, મોહમ્મદ યાસીન ગજન દ્વારકા પ્રમુખ, રમેશભાઈ મેર બોટાદ પ્રમુખ, જયંતિભાઈ પટેલ મોરબી પ્રમુખ, યજુવેન્દ્ર જાડેજા કચ્છ પ્રમુખ સૌ એક સાથે ગાડું અર્પણ કરશે। ત્યાર પછી રાજકોટ શહેર પ્રમુખ પ્રદીપ ત્રિવેદીજી, જુનાગઢ શહેર પ્રમુખ અમિત પટેલ, જામનગર શહેર પ્રમુખ વિરેન્દ્ર જાડેજા સૌરાષ્ટ્રનો એક પટારો એમને અર્પણ કરશે। કહેવાય છે કે આ પટારો ખાલી ન થવો જોઈએ અને આ પટારા જેવી જે મતપેટી છે એ મતપેટી પણ તમારા સૌની તાકાત અને સહકારથી કોંગ્રેસના તરફી મતોથી ભરાઈ જાય એવો વિશ્વાસ આજે આપણે રાહુલજીને આપીએ। આગળ ચાલતા ગુજરાત પ્રદેશ સમિતિના પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોરને હું વિનંતી કરું કે આવીને પ્રાસંગિક પ્રવચન કરે। આપણા સૌના લાડીલા સમગ્ર દેશના લોકો જેની સામે મીટ માંડીને બેઠા છે, ભારત જોડો, માનવતા જોડો, ભાઈચારાને મજબૂત કરો, હિન્દુસ્તાનને મજબૂત કરો, નફરતની ખેતી બંધ કરો, આ વાત લઈને ભારત જોડોની પદયાત્રા લઈને નીકળેલા આપણા સૌના લોકલાડીલા નેતા આદરણીય રાહુલજી, યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માન્ય અશોક ગેહલોત સાહેબ, કેસી વેણુગોપાલ સાહેબ, માન્ય ડોક્ટર રઘુ શર્માજી, રમેશ ચેનીથલાજી, રામકિશનજી, અહીંયા અમારી સાથે અન્ય રાજ્યોમાંથી આવેલા અને એઆઈસીસીના ખૂબ જ વરિષ્ઠ નેતાઓ છેલ્લા એકાદ મહિનાથી અમને બળ આપી રહ્યા છે, માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, એવા સિનિયર લીડર્સ માન્ય શક્તિસિંહભાઈ, માન્ય અર્જુનભાઈ, માન્ય સિદ્ધાર્થભાઈ, કાર્યકારી પ્રમુખશ્રીઓ, સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિના મારા કોંગ્રેસ પક્ષના સૌ ઉમેદવારો, પ્રદેશ, જિલ્લો, તાલુકા, તમામ વિભાગના મારા સંગઠનના પરિવારના સૌ મુરબ્બીઓ, ભાઈઓ, બહેનો ને યુવાન દોસ્તો, આદરણીય રાહુલજીને આપની વચ્ચે વધારે સમય નહીં લઉં। ભારતીય જનતા પાર્ટીના પગ નીચેથી ગુજરાતમાં જમીન ખસી ગઈ છે, ફરે છે,
વાતો કરે છે અને વાતોમાં કેટલો દમ છે, કેટલો કોન્ફિડન્સ છે, એ તમે ને અમે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. ગુજરાતની સાણી પ્રજાએ નક્કી કર્યું કે આ વખતે ભાજપનો મેળ નહીં પડે. કોરોના હોય, નોટબંધી હોય, 30 વખત પેપર ફૂટવાના બનાવો બને, શિક્ષણ ને આરોગ્ય મોંઘું હોય, વેપાર ધંધા જીએસટીના કારણે ખતમ થઈ ગયા, આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને આ વખતે પ્રજાએ નક્કી કર્યું છે, સૌરાષ્ટ્રની સંતોની વીરોની ભૂમિએ નક્કી કર્યું છે કે ભાજપ આ વખતે મેળ નહીં પડે. અને એટલે જ આપણને બળ આપવા માટે રાહુલજી આવ્યા છે. આખું દિલ્હીનો દરબાર આપણને તાકાત આપવા માટે આવ્યા છે. कार्यकर राहुल जी कहे छे कि आजादी से पहले ये गोरे अंग्रेजों की गोली और फांसी के फंदे से हमें नहीं डरे, तो ये भाजपा क्या चीज है. आ बात करीने राहुल जी આપણને સૌને તાકાત આપવા આવી રહ્યા છે. ચૂંટણીનો સમય નજીક છે. કાવતરાખોર ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, કાવતરા કરશે. એ કાવતરાઓમાં સતેજ રહેજો અને 15, 20, 25% જે મતદારો રહી જાય છે, આજે પ્રતિજ્ઞા કરીએ, રાહુલજીને આપણે સથિયારો આપીએ, રાહુલજીને ટેકો આપીએ અને એક મતદાર એક પણ બૂથ ઉપર મતદાન કર્યા વગર નહીં રહી જાય એવો રાહુલજીને આપણે બધા વચન આપીશું. અને આપણે સૌ આ ચૂંટણી શાંતિથી લડવાની છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણીના 4-5 દિવસ બાકી હશે ને શું કરશે ખબર છે? મને ખબર પડી છે કે જેલોમાં જે રીઢા ગુનેગારો હતા, લાંબી સજા ભોગવી રહ્યા હતા, એવા લોકોની જેલોમાં मीटिंग થઈ છે. मैं ये जिम्मेदारी के साथ राहुल जी बोलता हूं, सत्ता नहीं आ रही, जेलों से गुंडों को बाहर निकालो, चुनाव आयोग को छूट ऐसे ही दो. आज हमें जवाना था महुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय गृहमंत्री नो कार्यक्रम છે એવું કરીને એક હેલિકોપ્ટરોની મંજૂરી નહીં આપી. કોંગ્રેસ પ્યાર મોહબ્બતની કોંગ્રેસ છે. કોંગ્રેસ હારે છે તો પણ પતાસા વેચીને લોકોના મોઢા મીઠા કરાવે છે, અને કોંગ્રેસ જીતે છે ત્યારે એની જવાબદારી સાથે જીતીને સરકાર બનાવીને લોકોના કામ કરે છે. ખૂબ ધૈર્ય માથે બરફ રાખીને ભારત જોડોની યાત્રા લઈને આપણા નેતા નીકળ્યા છે, ત્યારે આખા દેશમાં નફરતની ખેતી કરવા વાળાને તમાચો વાગી રહ્યો છે. કોઈ શબ્દ નથી એની સામે બોલવા માટે. અને સૌરાષ્ટ્રની તપોભૂમિમાં મારું કોંગ્રેસ પરિવાર જ્યારે ભેગું થયું છે, ત્યારે ખૂબ તાકાતથી આ ચૂંટણીના પરિણામો કોંગ્રેસની 125+ સાથે સરકાર બનાવો, એ જ વિનંતી સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણા સન્માનનીય નેતા, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી, અને 2017ની ચૂંટણી હોય કે 2022ની ચૂંટણી હોય, સદા કોંગ્રેસને તાકાત આપવાનું કેમણે કામ કર્યું છે એવા અશોક ગેહલોતજી હવે આપણને સંબોધન કરશે. हमारे सबके महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ उपस्थित भाई जगदीश ठाकुर जी, केसी वेणुगोपाल जी, रघु शर्मा जी, शक्ति सिंह गोयल जी, रामकृष्ण ओझा जी, मिलन देवड़ा जी, और यहाँ के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु जी, सिद्धार्थ पटेल साहब, अर्जुन मोडवाड़े जी और तमाम उपस्थित हमारे मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हम सबको बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो. उसको छोड़ करके आपके लिए आए हैं, गुजरात के लिए. तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी के दिलो दिमाग में क्या भावना है गुजरात के प्रति. पिछले चुनाव में आपने सबने
राहुल जी के प्रति जो प्रेम था, प्यार था, आशीर्वाद था, वो दिखाया गुजरात वासियों ने। और हम लोग जीत के नज़दीक पहुंच गए थे, 8-10 सीटों का फर्क रह गया था। तो हम जानते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के परिवार में इस बात का एहसास है कि गुजरात के लोगों की भावना राहुल जी के प्रति क्या है। देश के हालात बहुत गंभीर है, उसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य यही है जो देशवासियों के दिलों के अंदर इश्यू बना हुआ है। नंबर 1, भयंकर महंगाई की मार, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नंबर 2, बेरोजगारी, नौजवानों में बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निराशा के भाव आ रहे हैं। और उनके परिवार के माँ बाप सोचते हैं पता नहीं बेटा बड़ा होके क्या करेगा पढ़ करके। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल बना देश के अंदर। और तीसरा सबसे खतरनाक वो है तनाव का, हिंसा का माहौल। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक भी अगर कोई लेख लिख दे तो जेल जाओ, राजद्रोह है, देशद्रोह है। ऐसा पहले कभी नहीं था। 70 साल में कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी के पहले भी त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई। आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके आधार पर ये देश चला है। देश एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र जड़ें मजबूत हुई देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी जान चली गई, उनका सीना छलनी हो गया, पर देश को एक व अखंड रखा, वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात करते करते। तो एक तरफ तो शानदार इतिहास है आपके मालूम है, और दूसरी तरफ जो अहम और घमंड में चल रही सरकार, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये 2 लोग देश चला रहे हैं। ये संभव नहीं है, असंभव है। कोई बोल नहीं पा रहा है, उनकी पार्टी के अंदर भी तब भय है। वो भय पहली बार गुजरात की जनता निकाल रही है। 32 लोग जो इनके उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो रिबेल खड़े हो गए। वो हिम्मत तभी कर सकते हैं जब जनता का मूड बदलावा हो। सरकार विरोधी लहरें गुजरात के अंदर, कोरोना को लेकर के कितने लोग मारे गए इनकी लापरवाही से। क्या हुआ, शराब पी करके, नकली शराब पी करके कितने लोग मारे गए। मोरबी के अंदर अभी आपने साइलेंट रखा। मैं खुद गया मोरबी में, राहुल गांधी जी ने कहा वहाँ जाइए सीधे आप। हम लोग गए, सभी लोग सबसे मिले, घायलों से मिले। हम लोग दाह संस्कार में भी गए, वहाँ पर सब कुछ देखा। और एक मांग करी खाली, जो भारी मांग थी। आरोप नहीं लगाया हम लोगों ने, हमने कहा खाली आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवाओ, जिससे कि सच्चाई मालूम पड़े किसकी लापरवाही से 135 लोग मारे गए हैं। तो मालूम पड़े तो कम से कम आगे गलतियां नहीं करें, लोग डर रहे, भय रहे, हम अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। वो भी इनको मंजूर नहीं है। अब गुजरात हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो राहुल गांधी जी अभी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मुझे खाली आपको ये अपील करनी है, सरकार विरोधी भयंकर लहर है, मुख्यमंत्री सहित सबको बदल दिया गया है, उससे अंदाज लगा लीजिए। बेरोजगारी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर भी। सड़कों की स्थिति कैसी बन गई है, कोई जमाने में क्या थी आपको मालूम है, सारे इश्यू आपको मालूम है। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो राहुल जी के निर्देश पे जो वचन दिए गए हैं आपको, राहुल गांधी जी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, तो जो हमने जन घोषणा पत्र, जनता से पूछ के बनते हैं घोषणा पत्र आजकल राहुल जी के निर्देश से। पहले नाम था घोषणा पत्र का, अब नाम है जन घोषणा पत्र। यहाँ भी वैसे ही बना है, वचन वैसे ही दिए गए, जनता को पूछ करके दिए गए। इसलिए आप सबको मालूम वचन क्या है। खाली मुझे इतना ही कहना है, आप विश्वास कीजिए वचनों पर। राजस्थान सरकार ने कई वचन पूरे किए हैं, यहाँ पूरे किए जाएंगे।
राहुल गांधी जी चुनाव जीतने के बाद में भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। कमेटी बनाई बाकायदा एआईसीसी ने मॉनिटर करने के लिए। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कहाँ तक निभाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और आप पार्टी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोच सकते हो झूठे वादे कर रहे हैं वो लोग। हिमाचल में वो पता नहीं अचानक ही वहाँ भी आपकी तरह वादे किए थे हिमाचल प्रदेश वासियों से। वहाँ पे भी रोड शो किए थे, बड़े बड़े मीटिंग की थी, अचानक ही पूरा विड्रॉ कर लिया अपना कैंपेन। आप सोच सकते हो कि ऐसे लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब गायब हो जाए। गुजरात से भी वादे झूठे, उनके कोई दम नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट है, वो सामने आ रहा है आपके। धीरे धीरे उनका टेम्पो नीचे इसीलिए आ रहा है। सच्चाई सच्चाई होती है और गुजरात के लोग, गांधी के प्रदेश के लोग हैं, जानते हैं कि सच्चाई का मायने क्या होता है। इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ इस बार सबक सिखाओ। 27 साल का शासन बन गया उनका, एक मौका वापस दीजिए कांग्रेस को। सुशासन करके दिखाएगी कांग्रेस। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। राहुल जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं सौराष्ट्र के लिए कुछ कहना चाहता था आपसे। सौराष्ट्र की धरती राहुल जी शूरवीरों की धरती है। इसे सती, संत और सूरा की धरती कहा जाता है। यहाँ पानी की कमी के होने के बावजूद यहाँ का किसान अपने पसीनों की बूंदों से यहाँ धान पकाता है। ऐसी ये गौरववंती जो धरती है, इस पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश भाई ठाकुर जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, रमेश चेनेथाला जी, मोहन प्रकाश जी, मिलिंद देओरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, गुजरात के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है, वैसे ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। सत्तर दिन पहले कन्याकुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महाराष्ट्र से
मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे वो यात्रा लहराएगी। तकरीबन 3,500 किलोमीटर की यात्रा है। 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए। पैदल यात्रा है। बहुत सीखने को मिल रहा है। युवाओं से बातचीत हो रही है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनसे बात हो रही है। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं। ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं, मगर नदी सी है। रोज 5:30 बजे लोग आते हैं, 6 बजे हम शुरू करते हैं, 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को यात्रा खत्म होती है। अजीब सी बात है, थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जनता की शक्ति हमारी मदद कर रही है। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। बड़ी खुशी हो रही है, मगर दुख भी लग रहा है। युवाओं से बात करते हैं, हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है। हर 5-10 मिनट कोई युवा आता है, अपने सपने के बारे में मुझे बताता है। कोई कहता है इंजीनियर बनना था, सालों पढ़ाई की, सपना देखा था कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, आज मजदूरी कर रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनना था, शिक्षा के पैसे दिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाखों रुपए दिए, आज उबर की गाड़ी चलानी पड़ रही है, पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है। किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। हमने क्या गलती की? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता? उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है।
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जब किसान 50,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहलाया जाता, उसको डिफॉल्टर कहलाया जाता है। यह सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, खेत बर्बाद हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता। फोन लगाते रहते हैं, नंबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेजते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी दुख होता है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और मैंने बोला, देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिर्फ गुजरात में नहीं चलाते, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो। यही तो देश को रोजगार देती हैं। ये जो अरबपति हैं 2-3, ये रोजगार नहीं देते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो रोजगार देते थे। क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया। मुझे याद है, हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की।
और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे हम बर्बाद हो गए, नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये जीएसटी, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है, इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार है। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बीएचईएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को। यह आपकी पूंजी है, यह आपका धन है। पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार में लाखों पोजीशन खाली है, तो आप एक तरफ बेरोजगारी तो सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1100 रुपए का है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये हमारी, ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात में दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। 7-8 घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूरों से,
और 7-8 घंटे चलने के बाद कभी 10-11 घंटे हो जाते हैं, हम 15 मिनट अपनी बात रखते हैं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ઇન્દ્રનીલભાઈ, સરદાર પટેલનું, આપણા લાડીલા સરદારનું એક સ્ટેચ્યુ રાહુલજીને અર્પિત કરશે। માનનીય પ્રદીપભાઈને વિનંતી કરું કે આભાર દર્શન કરે। ગુજરાતનું ભવિષ્ય બદલનારી આ ઐતિહાસિક સભામાં ઉપસ્થિત બોલીએ जो आपके वचन हैं वो राहुल जी के सामने हम दोहरा रहे हैं, ऐसे कर। हम पक्ष के जो वचन है वो राहुल जी के सामने दोहरा रहे हैं। प्रत्येक महिला को 500 रुपये में गैस का बॉटल मिलेगा।